Good morning, children. This is Karan sir, and you are watching online classes of Scottish Public School. Today, we are going to start a fresh chapter for class 7 students. And here in my first chapter, I have covered the civics, diversity, beg your pardon, democracy and equality. We have completed and concluded the chapter. I have provided you the notes in PDF form in all your groups. So today I'm giving you one more time the reminder that you have to write down all the question answers provided to you. Write it in your SST Fair notebook clearly and correctly. Those who have completed, thank you to them. And those who have not done it, please do it. Send it in the group between 6 o'clock to 7 o'clock in the evening. Now, today we are going to start a new chapter in geography, chapter number 1, page number 96. I request all the students to open your book on page number 96. The chapter's name is Our Environment. This chapter's name is Our Environment. Geography. So, the term environment is derived from a French word environner, which means neighborhood. Therefore, environment means the surroundings or the conditions within which any living organism exists. What is the meaning of environment? Environment is derived. Where does this word comes from? This word came from a French word environner. Environner means the neighborhood. It means our surroundings. So, surroundings in which a living organism exists, that is known as its environment. Our environment is made up of different components. They can be classified into two broad groups, natural and human environment. It means we can divide our environment into two categories. These two categories are natural environment and human environment. पर्यावरण शब्द को हम दो भागों में बांट सकते हैं. पहला भाग होगा प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानवीय पर्यावरण. Natural environment includes the physical and the biological elements of the earth. Physical environment comprises all the non-living or the biotic component like land, water, air. It is also known as the habitat of the organism. प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो इसमें शामिल हो जाएंगे सारी ही जीवों से जुड़ी हुई चीजें, सारी जो सजीवों से रिलेटेड वस्तुएं, सारे जो सजीव हैं वो इसका हिस्सा होंगे. इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, जैसे कि जो नॉन लिविंग है या अबायोटिक कंपोनेंट है, जिससे धरती है, पानी है, हवा है, ये सारी चीजें आएंगी. बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस द बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड इवन द माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स. ये सारी चीजें मिलाकर के बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट तैयार हो जाता है. ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, their creations and their activities, the social, economic, political and the conditions in which they live. मनुष्य जिस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करता है, जिस तरह की रचनाओं को रचता है, उनके जो क्रियाकलाप है, समाज का जो निर्माण करता है, जो आर्थिक दशाएं होती है, जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, सारी चीजों को लेकर के वो एक मानवीय पर्यावरण का निर्माण करता है. It includes human beings, human-made objects like roads, buildings, humans, occupations such as farming, industry, human institutions like family, community, educational institution, workplace, political situation, and so on.
बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मिला करके ह्यूमन एनवायरनमेंट का इसकी रचना होती है। जैसे कि हमारा ऑक्यूपेशन है, खेती बाड़ी है, उद्योग है, धंधा है, परिवार है, समुदाय है, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, काम करने का स्थान है, और जो राजनीतिक अवस्था है। इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इन दोनों के बीच में तारतम्य क्या है, क्या समानता है, क्या इसमें एक संतुलन है, तो इसको हम समझेंगे। The physical and the biological environments are interrelated. जो भौतिक और जैविक पर्यावरण है, इन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। There is constant interaction between the two in the form of the transfer of energy and matter. The biotic and abiotic elements of the environment go through a number of changes, and any change in one is bound to affect the other. दोनों में से किसी में यदि किसी प्रकार की कोई परिवर्तन होती है, दोनों की स्थिति में कोई भी परिवर्तन देखने को यदि मिलेगा तो वो परिवर्तन दूसरे में को भी प्रभावित करेगा। Let's take a closer look at the interrelationship between the two components of the natural environment. The physical environment obtains its energy primarily from the sun. जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, जिसमें कि हम धरती, हवा और पानी की बात करते हैं, इसमें सारी जो एनर्जी आती है वो कहां से आती है? द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम, दैट इज सन, सूरज से आती है। Changes in air, water and even landforms feature occur directly or indirectly due to the solar energy. These changes in the turn affect the biological environment. The biotic elements depends upon the abiotic elements for their survival. जितने भी जीव हैं वो सभी जीव जो है जो अबायोटिक एलिमेंट्स है, जैसे धरती, हवा और पानी पर निर्भर करते हैं। हम ह्यूमंस और या कोई दूसरे भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? इन्हीं अबायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। धरती ना हो तो फसल ना होगी, फसल ना होगी तो हम खाएंगे क्या, और ना खाएं तो फिर जिएंगे कैसे? The biotic elements depend on the abiotic elements for their survival. For example, all plants obtain their food from land, water and air, sunlight. All animals get their food directly or indirectly from plants. जितने भी जीव जंतु है, मनुष्य है, सभी लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन कौन देता है? प्लांट्स, पौधे देते हैं। यदि आप जानवरों से भी अपना भोजन लेते हैं, परंतु जानवर कैसे जिंदा रहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से वो भी पौधे का ही उपभोग करते हैं। The biotic elements also affect the physical environment in many ways. For example, plants release oxygen in the air and burrowing animals dig up the soil and make it loose. बायोटिक एलिमेंट्स क्या करते हैं? ये फिजिकल एनवायरनमेंट को बहुत सारे तरीकों से प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, पौधे जो हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं हवा में, और बरोइंग एनिमल्स डिग अप द सॉइल एंड मेक इट लूज, जो नीचे जमीन के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि हो गए केंचुए, खरगोश, सांप, बिच्छू, ये सब जो जमीन को खोदते हैं, इस मिट्टी को लूज करते हैं। Human beings with their varied activities like agriculture, cutting of trees, mining, construction of roads and buildings also cause a number of changes in the physical environment. हम भी अपने अनेक गतिविधियां जैसे सड़क निर्माण करने से लेकर भवन निर्माण करने से लेकर कृषि से जुड़े हुए कार्य, अन्य प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा हम फिजिकल एनवायरनमेंट को प्रभावित करते रहते हैं। आज से 50 साल पहले जहाँ पे बियावान हुआ करती थी, जमीन जहाँ बंजर हुआ करती थी, खाली हुआ करती थी, आज वहाँ मकान, बिल्डिंगें, फैक्ट्रीज, कारखाने, उद्योग लग पड़े। फिजिकल एनवायरनमेंट में पूरी चेंजेस आ चुकी है। फिजिकल जो अपीयरेंस है पूरी धरती का बदल चुका है। जहां हरियाली होती थी वहां आज कंक्रीट के जंगल बसे हुए हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट हम पढ़ेंगे अब। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या है, जैसे हमने पहले ही बताया कि नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के हम अलग अलग स्तर की जानकारी लेंगे एक एक कर। Land, water and air, living and all living organisms are different constituents of the natural environment. प्राकृतिक रूप से जो हमारा पर्यावरण मौजूद है उसके अलग अलग तत्व क्या क्या हैं? पृथ्वी है, जल है, हवा है और सारे सजीव जीव जंतु हैं। They are also called our four domains of the realms of the earth. इन्हें
पृथ्वी के 4 स्तंभ कहा जाता है। द 4 डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट आर लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, धरती के ऊपर का हिस्सा जो कठोर होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, ऑल वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, धरती पर मौजूद जितने भी जल के संसाधन हैं जैसे नदियां, झरने, सागर, महासागर, झीलें, तालाब, सारी चीजें हाइड्रोस्फीयर फॉर्म करती हैं। एटमॉस्फेयर, द एयर अराउंड अस, जो हमारे चारों ओर का हवा की जो ये लेयर है इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। बायोस्फीयर, ऑल द लिविंग वर्ल्ड, जो भी सजीवों की दुनिया है इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। व्हाट आर द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ? The 4 domains of the earth. First one is, it is lithosphere, hydrosphere, lithosphere, hydrosphere, hydrosphere, atmosphere, and the last one is biosphere. इसको आपको याद रखना है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब धरती का ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा है, हाइड्रोस्फीयर जितने भी पानी की मात्रा धरती पर उपलब्ध है, एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा हमारे धरती पर उपलब्ध है या धरती के चारों ओर जो उपलब्ध है, बायोस्फीयर में धरती पर जितने भी जीव जंतु और जितने भी सजीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं। Lithosphere is the outermost layer, solid layer of the earth, consisting of the rock, material and soil. It is known as the crust of the earth. पृथ्वी के बाहरी हिस्से को क्रस्ट भी कहा जाता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं? मिट्टी है, चट्टाने हैं, पहाड़ पर्वत हैं। It includes the continents as well as the oceans, basins. About 71% of the total area of the lithosphere is covered by water. The remaining 29% is occupied by land. Various landforms such as the mountains, plains are found on the lithosphere. लिथोस्फीयर का 71% जल है और 29% जो मिट्टी है। इस मिट्टी पर पहाड़, मैदान, पठार, सभी तरह के लैंडफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इंपॉर्टेंस क्या? व्हाई द लिथोस्फीयर इज इंपॉर्टेंस फॉर अस? लिथोस्फीयर प्रोवाइड्स अस विद द लैंड सरफेस व्हिच कैन बी पुट इनटू वैरायटी ऑफ यूजेस। लिथोस्फीयर का ही हिस्सा है ये पृथ्वी, ये जमीन, धरती, जिसका हम इस्तेमाल अपने अलग अलग तरह के क्रियाकलापों में करते हैं। फसल उगाने से लेकर के बगीचे लगाने तक, मकान बनाने से लेकर फैक्ट्रियां, सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें बनाने तक, सभी चीजों में हम धरती का इस्तेमाल करते हैं। जमीन पर ही तो ये सारी चीजें होती हैं। The soil that is used for agriculture is a part of the lithosphere. जिस मिट्टी पर हम अपनी फसलें उगाते हैं ये भी लिथोस्फीयर का हिस्सा है। The variety of rocks and minerals that make up the lithosphere are also useful to us. जितने भी प्रकार के मिनरल्स, पहाड़, पत्थर, चट्टाने हैं, ये सारी किसी न किसी रूप में हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाइड्रोस्फीयर, the hydrosphere is the domain of water. All water bodies such as oceans, seas, rivers, lakes together make up the hydrosphere. जितने भी जल से संबंधित जल के स्रोत हैं, सारे ही चीजें मिलकर के हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करती हैं। It also includes the ice sheets in the polar and the high mountain regions, underground water and water vapor in the air. जो भी हवा के अंदर जलवाष्प के रूप में जो पानी मौजूद है, धरती के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर मौजूद है, पहाड़ों के चोटियों पर जो बर्फ से ढकी हुई शिखरें हैं, उन शिखरों पर उपलब्ध जो बर्फ है, सारी ही चीजें मिलकर के हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करती हैं। इंपॉर्टेंस, हाइड्रोस्फीयर का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसा हमने पढ़ा, नेचुरल एनवायरनमेंट के 4 हिस्से हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर पढ़ा, उसका इंपॉर्टेंस क्या वो हमने जाना। हाइड्रोस्फीयर पढ़ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या ये जानेंगे। वाटर सपोर्ट्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ एंड यूजफुल टू अस इन नंबर ऑफ वेज। पानी के बिना हम
हमारे जीवन की कल्पना भी धरती पर नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से मनुष्यों को पानी की आवश्यकता है, इस संसार में जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं सभी को जल की आवश्यकता पड़ती है। Water, apart from the domestic, agricultural and industrial uses, is used to generate electricity and also to means of the transport. As means of transport, ocean support marine life, provide us with the food and minerals, moderate the climate of the coastal areas and also serve as the international trade routes. जल के जो संसाधन है जैसे सागर और महासागर, ये हमारे लिए, जैसे कि हम जानते हैं पानी के जो स्रोत है, पानी जो हमारे लिए काम करता है, हमें हमारे कंजप्शन के अलावा घरों में जो पानी का इस्तेमाल होता है नहाने धोने, कपड़े धोने, बर्तन धोने इत्यादि में, उसके अलावा हम फसलें उगाते हैं पानी के बल पर, इंडस्ट्रियल यूजेज होती ही है। साथ ही साथ बिजली के निर्माण में भी जल के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ समुद्र जो है वो हमें एक सी रूट ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें सी रूट प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ मरीन एनिमल्स को जीने में मदद करते हैं, जिससे हमें समुद्र से मछलियां और अन्य प्रकार के रिसोर्सेस अवेलेबल हो पाते हैं। अब पढ़ेंगे अगला जो पॉइंट है, अगला जो डोमेन ऑफ द अर्थ है, एटमॉस्फेयर। द एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और यू कैन हैव अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। The layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. The layer of air is atmosphere. Excuse me. The earth's gravitational pull holds the atmosphere around it. Air is a mixture of various gases, water vapor and the dust particle. Nitrogen is the most abundant gas found in the air, constituting 78% of it. जितनी भी हवाएं हमारे धरती के चारों ओर उपलब्ध हैं, इनमें से 78%, 78% of the entire volume of the air is nitrogen. ऑक्सीजन 21% और जो बचे हुए 1% उसमें सारी ही गैसें आती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, ओजोन है, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है? द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन मेक्स अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। इन्हीं चीजों को, इन्हीं तत्वों को मिलाकर के किसी जगह का वेदर, मौसम वहां का बनता है। द gases in the atmosphere are useful to us in various ways. Nitrogen is required to maintain the fertility of the soil. Oxygen is the gas that living beings breathe in. Carbon dioxide helps the plants to produce food in the presence of the sunlight. It also keeps the earth warm by absorbing the heat radiated from the surface. Ozone protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. Water vapor in the atmosphere condenses and causes precipitation. जितनी भी प्रकार की गैसें हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, ये सभी हमारे लिए किसी न किसी रूप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे लिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए मिट्टी में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होता है। जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी वहां पे फसलें अच्छी नहीं उगेंगी। ऑक्सीजन सभी जीवों को सांस लेने में काम आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओजोन जो है सूरज से निकलने वाली हार्मफुल यानी हानिकारक किरणों को धरती पर हानि करने से बचाता है। ओजोन लेयर हमें हमारी ग्रह को बचाता है। इस प्रकार से सारी गैसें हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। इस चैप्टर में आज यहीं तक। मैं आशा करता हूं कि अगले एक और क्लास में ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस चैप्टर के ए, बी तथा सी नंबर प्रश्नों को बनाकर आज शाम 6 से 7 के बीच हमारे ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।